Hello everyone. Today we will start with the colligative property. The colligative property are those property of the solution which depend upon number of solute particles irrespective of their nature. यानी कि colligative प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होंगी जो नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे. ऐसी प्रॉपर्टी दैट विल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, तो उसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे. यानी कि नेचर पे ना डिपेंड करे, नंबर्स पे करे. नंबर मीन्स हाउ मैनी मोल्स ऑफ दैट सल्यूट इज टेकन, हाउ मच अमाउंट ऑफ दैट सल्यूट इज टेकन, दैट इज रेफर्ड एज नंबर ऑफ solute particles. Now this is the very important topic because in every year one question has been asked from colligative property. In this, under this heading we will discuss 4 colligative property one by one, and these property can be discussed by using Raoult's law. So as you all know what is Raoult's law, we have already discussed Raoult's law for volatile component as well as for non-volatile component. There we see that when a non-volatile solute is added to a solvent, then there is decrease in vapor pressure. There is decrease in vapor pressure. Vapor pressure कम हो जाता है. And we discussed that vapor pressure of solution is always less than vapor pressure of pure solvent. It means that if we consider the example of water, the boiling point of water is 100 degrees Celsius. At 100 degrees Celsius, water will form vapor phase. Water will go in vapor phase, and that will exert pressure. But when we add NaCl to water, then at 100 degrees Celsius, vapor pressure decreases because the boiling point increases. Why boiling point increases? Because there is a solute solvent interaction, strong solute solvent interaction as compared to solvent solvent and solute solute interaction. So it means at 100 degrees Celsius the number of vapor formed by solvent is less than the pure solvent. It means in pure solvent there is no solute solvent interaction. So at that case at 100 degrees Celsius maximum vapor can be formed, and therefore maximum number of vapor is formed. It means there is maximum vapor pressure. But when we add non-volatile solute, that is salt, in a water, the boiling point will increase. It means at 100 degrees Celsius there is less vapor pressure because less vapors are formed. If vapors are less, then automatically vapor pressure also decrease. Now we will discuss here one by one, that is colligative property. Let us start with colligative property. So what is the definition of colligative property? The property of solution which depend on number of solute particle irrespective of their nature relative to total number of particle present in the solution. मतलब जो सोल्यूट पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ सोल्यूट पे, कि उस प्रॉपर्टी को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करेंगे, बोलेंगे. नेचर पे डिपेंड है ना करे. नेचर में कोई भी किसी भी टाइप का क्यों ही ना सोल्यूट क्यों ना हो, वो नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, अमाउंट पे डिपेंड करे, उसको हम बोलेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. देयर आर बेसिकली 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दैट वी हैव टू डिस्कस अंडर दिस हेडिंग. तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि व्हाट इज़ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. नो, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज़, अब देखो जैसे मैं सिंपल करता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल. ये बेसिक है. एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ सोल्यूट, irrespective of nature of solute particles. So here we will discuss only number of moles of solute particle, the property which depend upon number of moles of solute particle and independent on nature of solute.
और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, m डिवाइडेड बाय m, यानी कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज टेकन, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करें, और मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट जिसे हम कैपिटल M से डिनोट करें। ये मोल्स वगैरह हमने निकाले थे जब हमने मोल फ्रैक्शन डिस्कस किया था न्यूमेरिकल वगैरह में, तो मोल्स ऐसे निकालेंगे हम। नाउ वी विल डिस्कस द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हमें ये भी पढ़ लिया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। ये डिपेंड करेगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे। हमें ये भी पता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कैसे निकालते हैं। जैसे 12 ग्राम ऑफ वाटर इज़ गिवन, 12 ग्राम ऑफ वाटर इज गिवन, इट मीन्स 12 डिवाइडेड बाई 12 ग्राम वेट दिया वाटर का, डिवाइडेड बाई मोलर मास वाटर का हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू 18 ग्राम। तो द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर, there are 4 colligative properties. Number 1, relative lowering in vapor pressure. Number 2, elevation in boiling point. Number 3, depression in freezing point. And number 4, osmotic pressure. तो यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम में इन चारों में से एक प्रॉपर्टी ज़रूर आएगी भाई। हर साल यहाँ से एक न एक प्रॉपर्टी फाइनल एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो भी हम ज़रा डिस्कस करें यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग का मतलब ये होगा कि वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। लो मीन्स कम, तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है कब, जब व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू दी सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर कम हो गया। अब वेपर प्रेशर क्यों कम हुआ, क्योंकि देयर इज़ इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के कारण हमें हाई टेम्परेचर पे उसे वेपोरेट करना पड़ता है। तो सेकंड पॉइंट यही है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अब आपने ये याद रखना है कि जब भी हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ दैट द सॉल्वेंट विल डिक्रीज। वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। और यहाँ पे अगर कोई एक्सप्लेनेशन पूछ ले भाई बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, तो आंसर ये होगा कि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले भाई वेपर प्रेशर डिक्रीज, तब भी आंसर यही रखेंगे हम कि व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट देयर इज स्ट्रॉन्ग सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वेपर प्रेशर डिक्रीज। ये छोटे छोटे पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अपने नोट्स में लिख लिया करो, नोट बना के लिख लिया करो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये कुछ ना नोट अपने आप बनाओ, जो जैसे मैं ये पॉइंट डिस्कस करता हूँ तो ये आपके आगे फाइनल तक रहेगा आपके याद। ये आगे ये नहीं है कि +2 करनी है, आगे बीएससी या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी जाएंगे, कहीं कोई और कोर्स भी करें आप, तो वहाँ पर भी ये डिस्कस होगा, क्योंकि सोल्यूशन हर यूनिट में होगा। अगर मेडिसिन यूज़ बड़ा बारी है इसका, जितनी भी दवाइयाँ हैं सस्पेंशन में आती हैं, जैसे कोलाइडल पार्टिकल्स पढ़ते हैं हम, ये भी पढ़ेंगे अगले यूनिट आएंगे जब हमारे पास। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। नाउ वी विल डिस्कस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग को हम स्टार्ट कर रहे हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को मैथमेटिकली हम अब प्रूफ करेंगे कि इट विल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन ए लिक्विड द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन बिकम लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का कम हो जाता है प्योर सॉल्वेंट के से। जैसे कि हमने वाटर की एग्जांपल लेके डिस्कस किया था कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है और जैसे हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो इट विल इंक्रीज़, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा आता है फिर बॉइलिंग पॉइंट। तो अब हम इसे मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। सपोज लेट अस कंसीडर ए बाइनरी सॉल्यूशन which contain A and B component। हमने बाइनरी सोल्यूशन ले लिया, बाइनरी सोल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट हो। सपोज B इज़ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, B को हमने कंडीशन लगा दी कि ये सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट।
तो बी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हुआ। तो ए क्या बन गया, अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ। अब हम रॉड्स लॉ लगा रहे हैं, कौन सी लगाएंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की। पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये हमने पढ़ा हुआ है दो कंपोनेंट के लिए। ए यहाँ पे सॉल्वेंट है और बी सोल्यूट है, ये याद रखना है। तो पी ए प्रेशर सॉल्वेंट का और पी बी प्रेशर सोल्यूट का। टोटल प्रेशर हमने डिस्कस किया था, पी टोटल जो था दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो पी ए की वैल्यू पुट करो, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये आया। अब आगे नेक्स्ट करो, हमें ये भी पता है मोल फ्रैक्शन को एक्स ए प्लस एक्स बी क्या पता होता है आपको कि किसके बराबर होता है, वो भी डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पे पी नॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। क्यों ज़ीरो आ गया, क्योंकि बी इज़ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो यहाँ पे हम एक ही लेते थे, तो पी नॉट बी बन गया ज़ीरो। तो पी एस किसके बराबर आएगा फिर, पी एस जो टोटल प्रेशर है वो इट इज़ इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ये है नॉन वोलेटाइल कंडीशन, अंडर नॉन वोलेटाइल कंडीशन। तो पी बी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स ए, पी एस टोटल, पी एस ओवर पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स ए, पी एस ओवर पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। क्योंकि हमें पता है एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर होता है, 1। तो यहाँ से हम एक्स ए की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी, वही लिखा हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे आगे करें तो 1 माइनस पी एस ओवर पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। जो रीअरेंज किया हमने, ये रीअरेंज करें तो ऐसे आता है एक्स बी की वैल्यू। तो 1 माइनस पी एस ओवर पी नॉट ए। अब पी ए को नीचे करो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू एक्स बी। तो दिस इज़ द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड अगर देखें तो पी एस मतलब पी नॉट ए माइनस पी एस, पी नॉट ए इसको हम होंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मैं शॉर्ट टर्म में लिख रहा हूँ आर एल वी पी, दैट इज़ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये किसके बराबर आ रहा है, मोल फ्रैक्शन के बराबर आ रहा है, मोल फ्रैक्शन। अब हम मोल फ्रैक्शन को नंबर ऑफ मोल्स में लिखते हैं, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ पे एन बी किसके बराबर आएगा, एम बी, स्मॉल एम बी ओवर एम बी, स्मॉल एम बी ओवर एम बी। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो जितना ग्राम दिया हो उसके मोलिकुलर मास से। तो स्मॉल एम होगा अमाउंट गिवन, ये आपको दी होगी किसी भी क्वेश्चन में, 20 ग्राम 10 ग्राम, और उसका मोलिकुलर मास कितना आता है उससे आपने डिवाइड करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इफ़ it is clear that relative lowering in vapor pressure is a colligative property. Why colligative property? Because mole fraction depend upon number of moles. Mole fraction depend upon number of moles and hence it become a colligative property. हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये जिसकी किया था कि दैट विल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल, क्योंकि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी। एन ए बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, क्योंकि बी को हमने सोल्यूट ही लिया हुआ। तो हैंस इट विल बिकम एज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखें, एक दो बार पढ़े इसको, तो आपको आसानी से लर्न हो जाएगा ये। और जो लेफ्ट साइड आ रही है इसको हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोल रहे हैं, पी नॉट ए माइनस पी एस। अब यहाँ से हम मोलर मास भी निकाल सकते हैं कि सोल्यूट बाय यूजिंग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये भी आता है कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट यूजिंग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इस एग्ज़ाम ऐसे करके आता है। तो नो स्टार्ट विद दिस। अब हम इसको निकालते हैं, ये कैसे निकालना है। अब हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं फार्मूला। अब ये आपने, मैं साइड में लिख रहा हूँ, आपने सीधा ही लिखना है। यहाँ से मैं साइड में कर रहा हूँ थोड़ा सा ही, पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। यही हमने अभी निकाला, वो एक्स बी के बराबर था। और एक्स बी किसके बराबर था, एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी। अब एन बी किसके बराबर, एन किसके बराबर होता है, स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम, स्मॉल एम ओवर, इसको मैं स्मॉल एम करूँ कैपिटल एम। तो जिसको हम वेट ले लेते हैं डब्ल्यू ओवर एम। वेट से आपको पता लग जाएगा कि डब्ल्यू, मैंने अब डब्ल्यू से डिनोट कर दी ऐसे कि कितना ग्राम दिया हुआ वो सोल्यूट, हाउ मच सोल्यूट इज़ गिवन। तो इसको हम अप्लाई करेंगे। लेट अस डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी आर
मास ऑफ ए एंड बी कंपोनेंट, दो कंपोनेंट थे सोल्यूशन के ए और बी, तो उनके मास ले लिए रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ दो के मास आ गए, तो एम ए एंड एम बी द मोलर मास ऑफ ए एंड बी कंपोनेंट, ए एंड बी कंपोनेंट। ये मान के चल रहे हैं कि हम डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी, एम ए और एम बी, तो हम जो मान लिए भाई। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ए सॉल्वेंट है और बी सोल्यूट लिया हुआ हमने, ये कंडीशनली शुरू में लगाई थी हमने। अब इसको हम यूज़ करें तो क्या बनेगा हमारे पास, एन ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए ओवर एम ए, और सिमिलरली एन बी किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू बी ओवर एम बी। मोल ऐसे ही निकलते हैं ना कि जिस कितने ग्राम उसका मोलिकुलर मास, जितना ग्राम बी लिया उतना मोलिकुलर ग्राम। और एक्स बी किसके बराबर है, एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी। अब यहाँ पे एन ए वाटर टेकन इन लार्ज अमाउंट, वाटर बहुत ज़्यादा लिया होता है, वहाँ पे वो कंडीशन लगाएंगे। दिस इक्वेशन नंबर 2, और उसको फर्स्ट दे देना ये, हाँ ये मैंने दे दी फर्स्ट, तो ये 2 होगी। अब इसको हम उधर पुट करेंगे, 1 में एक्स बी की वैल्यू को 1 में पुट करेंगे, तो देखो फिर क्या बनता है। अब यहाँ पे सपोज सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, यहाँ पे हम सॉल्यूशन की कंडीशन लगा रहे हैं, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की कंडीशन है डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए। तो एन ए प्लस एन बी किसके बराबर हो जाएगा, एन ए, क्योंकि वाटर बहुत लार्ज अमाउंट में होगा, और जो कम अमाउंट में हो उसको हम फिर निगलेक्ट कर देते हैं। तो एन ए प्लस एन बी इज़ अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट होगा, यानी बी की वैल्यू निगलिजिबल आएगी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, निगलिजिबल। तो उसको हम अप्रोक्सीमेट उतना ही मानेंगे, जैसे ए की वैल्यू ज़्यादा तो बी की बड़ी कम हो, तो उस केस में ये कंडीशन याद रखनी, एन ए प्लस एन बी एन ए के बराबर होता है। सो इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, अब हम इक्वेशन 2 को कैसे लिखेंगे हम, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी ओवर एन ए ओनली, क्योंकि अब एन बी की वैल्यू 0 होगी है, तो एक्स बी हम ये पुट करेंगे, तो एन बी ओवर एन ए। तो एक्स बी जो था हमारे पास इन टर्म ऑफ डब्ल्यू ए की फॉर्म में लिख लेते हैं, डब्ल्यू बी ओवर एम बी, क्योंकि एन बी इसके बराबर था और एन ए किसके बराबर है, डब्ल्यू ए ओवर एम ए, डब्ल्यू ए ओवर एम ए। तो यहाँ से हमारा मोलर मास निकल आएगा, क्योंकि मास आने शुरू हो गया अब यहाँ पे, इसलिए हमने मास तक कैलकुलेट किया, इसको कोरिलेट किया हमने मास तक, मोलर मास निकाल रहे हैं हम किसी का भी। तो एक्स बी किसके बराबर आएगा, डब्ल्यू बी ओवर एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू एम ए ऊपर चला जाएगा भी। तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। वी नो दैट पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 से लिया। तो अब इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लें हम। अब एक्स बी की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे इन टर्म ऑफ डब्ल्यू बी एम ए, ये वाली थर्ड वाली, क्या अब हम करेंगे पुट 3 इन 4, ऐसे करेंगे हम यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 4। तो क्या बन जाएगी, 4 क्या बन जाएगी, पी नॉट ए माइनस पी एस इंटू पी नॉट ऑब्लिक पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी था, एक्स बी की वैल्यू पुट कर दो आप, एक्स बी किसके बराबर है, डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, इसी के बराबर आ रही है। तो अब यहाँ से एम बी निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू ए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेसिकली हमने इसको। तो यहाँ से हमारा मोलर मास आ गया भाई, मोलर मास निकाल दिया हमने। तो दिस इज़ द सिंपल मेथड टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाय यूजिंग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इस ढंग से हम इसको निकाल सकते हैं। जहाँ आपको पता है डब्ल्यू बी क्या है, एम ए क्या है, डब्ल्यू ए क्या है, पी नॉट ए माइनस पी एस ओवर पी नॉट ए क्या है, तो हर को हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। तो इस इक्वेशन से हम मोलर मास निकाल सकते हैं।
इस इक्वेशन को हम बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर 5। और ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 है, इसका लेफ़्ट साइड जो है दैट इज़ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और राइट साइड क्या था, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमने मोल्स में ली और फिर उसके बाद उसे मोलर मास में की। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम आ जाते हैं, दैट इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, EBP शॉर्ट फॉर्म में ले दो। The increase in temperature increase the vapor pressure of component. A liquid boil at temperature where the vapor pressure is equal to atmospheric pressure. This is the boiling point definition. और vapor pressure of the solvent decrease in the presence of non volatile solute. तो ये तो डिक्रीज़ होता ही है, तो हमने पढ़ा ही है। अब देखो प्योर सॉल्वेंट ले लिया और कितने प्रेशर पे लिया था वो, 0.7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 0.7 एटमॉस्फेरिक। अब चलो बॉइलिंग पॉइंट समझाते हैं आपको। ये देखिए आप, ये प्योर सॉल्वेंट लिया हमने जिसका वेपर प्रेशर, जो सॉल्वेंट का प्रेशर जो है वो है 0.7 एटमॉस्फेरिक, और 0.7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और बाहर से जो एक्सटर्नल प्रेशर जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर करते हैं इन्वायरमेंटल, वो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बॉइलिंग पॉइंट कब बॉयल करेगा ये सॉल्वेंट, जब इसका अपना प्रेशर जो 0.7 एटमॉस्फेयर है वो एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए या इससे ज़्यादा हो जाए। तो इसको हमें हीट करके ही कर सकते हैं। इसको हम हीट करते जाएंगे और तब तक करते जाएंगे जब तक इसका अपना प्रेशर जो 0.7 एटमॉस्फेयर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए। तो इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। और ये लिखा भी आप देखें ज़रा सेकंड लाइन, ए बॉइलिंग पॉइंट एट ए टेम्परेचर वेयर द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ए लिक्विड बॉइल्स एट ए टेम्परेचर, ठीक है जी, लिक्विड बॉइल्स एट ए टेम्परेचर वेयर द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वेपर प्रेशर 0.7 को कितने के बराबर किया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो उसको हम क्या कैसे किया, हीट करके। जैसे हम हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसको एस्केप करने में हेल्प करती है। एस्केप करने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल की मूवमेंट आ जाएगी, भागेंगे, और जब वो मॉलिक्यूल भागेंगे तो वो प्रेशर डिवेल्प करेंगे, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी गैस की तरह होनी शुरू हो जाएगी, गैस एक्सर्ट प्रेशर। और ये प्रेशर जब धीरे धीरे करके 1 एटमॉस्फेरिक के बराबर हो जाएगा तो ये जो सॉल्वेंट है ये इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा उसका। तो ये एक एग्ज़ाम्पल लेके क्लियर किया हुआ है कि कैसे आप बॉइलिंग पॉइंट को समझें। और यहाँ पे इसको आगे पढ़ते हैं अब हम कि नॉन वोलेटाइल ऐड करें तो क्या होगा। तो यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट क्लियर हो गया कि क्या होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसको थोड़ा कर देते हैं साफ। नेक्स्ट अब इसको समझते हैं, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालें तो क्या होता है। थोड़ा सा ये भी अंडरस्टैंड हो जाएगा, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि एलिवेशंस का मतलब क्या है। यहाँ पे एलिवेशन का मतलब है इंक्रीज़, और कैसे होता है ये थोड़ा डिस्कस करते हैं। इस डायग्राम में देखिए, आपको एक सॉल्वेंट लिया है बीकर ए में और दूसरा सॉल्वेंट लिया है बीकर बी में। बी में क्या है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए। देखो मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ, ये बीच में इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट का, जिसे हम एक्सटर्नल प्रेशर बोलेंगे। और सोल्यूशन ए जो कि प्योर सॉल्वेंट है उसका प्रेशर कितना है, 0.7। और जब बी में देखो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दे जब हम, तो उसका प्रेशर 0.6 हो गया, वो कम होता है जैसे नॉन वोलेटाइल ऐड करते हैं। अब हम टेम्परेचर देंगे तो किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, देखो 0.7 वाले का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और उसका वेपर प्रेशर कम होगा 0.6 वाले का। क्योंकि वेपर प्रेशर का मतलब ये है कि हम हीट करेंगे, और कितनी देर हीट करेंगे, ये 0.7 जो है 0.3 का डिफरेंस है बॉटम एटमॉस्फेयर तक लाने के लिए। तो इसके वेपर जल्दी बनेंगे, तो इसका वेपर प्रेशर आएगा ज़्यादा आएगा वेपर प्रेशर, क्योंकि जो 0.4 का फ़र्क है तो ये ईजिली अप्रोच कर जाएगा, जल्दी पहुंचेगा ये।
1 एटमॉस्फेयर के बराबर, जिसका प्रेशर ज़्यादा मानेंगे हम। और जो 0.6 है वो 0.7 से कम है, तो उसे ज़्यादा टाइम तक हीट करना पड़ेगा, उसके वेपर थोड़े धीरे बनेंगे, ज़्यादा टाइम तक हीट करना पड़ेगा। तो इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट 100 था वो 100 नहीं रहेगा, ज़्यादा देर तक हीट करना पड़ेगा, वो 100 से ज़्यादा आएगा अगर हम वाटर का केस ले रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम एलिवेशन। बढ़ गया देखो। तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हम क्या बोले हैं, T0B। और जो सोल्यूट ऐड किया उसका बॉइलिंग पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं, TB। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा, TB का या T0B का। तो अगर आप देखें तो TB का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा, क्योंकि 0.6 से 1 एटमॉस्फेयर जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा लाएगा। और 0.7 वाले का जो प्योर सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा, मतलब वो जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू ऑलरेडी ज़्यादा है, वो 1 एटमॉस्फेयर तक पहुँचने में थोड़ा कम टाइम लेगी। तो इसको बोलते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट में। तो अगर इसको हम मैथमेटिकली लिखें तो डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T0B, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू TB की आएगी, तो पॉजिटिव वैल्यू जो ज़्यादा वैल्यू उसमें से कम वैल्यू माइनस करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर पॉजिटिव ही आएगा हमेशा बॉइलिंग पॉइंट का, नेगेटिव नहीं जाता है। तो हायर में से लोअर वैल्यू माइनस करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे EBP, इट मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एक और सोल्यूशन लेते हैं। देखो एक और केस ले रहा हूँ मैं, इसमें सोल्यूट ज़्यादा डाल दिया है मैंने। देखो सोल्यूट ज़्यादा, आप देखो ये डॉटेड लाइन से मैं सोल्यूट ड्रॉ किया। जब ज़्यादा सोल्यूट डाल दिया तो उसका एटमॉस्फेयर प्रेशर और कम हो जाएगा 0.4, और 1 एटमॉस्फेयर में जाने के लिए इसका बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा वो बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, TB1 का, क्योंकि 0.4 से 1 एटमॉस्फेयर के बराबर करना है, तो ज़्यादा अमाउंट करना पड़ेगा, हीट ज़्यादा देर तक करनी पड़ेगी हमें। तो इसी का बोलते हैं कि जितना ज़्यादा सोल्यूट डालेंगे उतना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जितना कम सोल्यूट डालेंगे उतना कम बढ़ेगा। अगर सोल्यूट नहीं डालेंगे तो प्योर का बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा। नाउ डिस्कस दिस बाय द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन विच द सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है वो हमेशा ही ज़्यादा आएगा प्योर सॉल्वेंट के। तो प्योर सॉल्वेंट सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे थे, तो आपने देखा जो अभी हमने डिस्कस किया, तो जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हैं तो उसका प्रेशर कम हो रहा है, लिक्विड का प्रेशर कम हो रहा है, सॉल्वेंट का प्रेशर कम हो रहा है, तो उसको 1 एटमॉस्फेयर लाने के लिए ज़्यादा देर तक हीट करना पड़ रहा है। और ये अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। जैसे हमने सेकंड केस में देखा कि ज़्यादा वो लिया था नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो उसका वेपर प्रेशर 0.4 था, वो उसको एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर करने के लिए ज़्यादा देर तक हीट करना पड़ रहा है। तो इस टाइप को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इट मीन्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन विच द सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। तो ये हमेशा याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, सोल्यूशन और सॉल्वेंट को कंपेयर करें, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अगर मैं वेपर प्रेशर पूछूँ तो वेपर प्रेशर उल्ट होगा, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका कम बॉइलिंग पॉइंट पे ज़्यादा वेपर बन जाएंगे। तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस ढंग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो प्योर सॉल्वेंट, सोल्यूशन, या फिर नन ऑफ दीज। तो आप देख लो, जब बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो सोल्यूशन का ज़्यादा होगा, और वेपर प्रेशर में रिवर्स ऑर्डर लेना है, वेपर प्रेशर में सॉल्वेंट का ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो उसके वेपर जल्दी बनेंगे, वेपर प्रेशर तभी तो ज़्यादा हो रहा है। और एलिवेशन मीन्स द एलिवेशन मीन इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये किस पे डिपेंड करेगा, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स rather than their nature. The increase in the boiling point, that is delta TB is equal to TB minus T0V, is known as elevation in boiling point. इसको हम बोलेंगे elevation in
boiling point, where T naught V is the boiling point of pure solvent and T naught B, sorry TB लिखना था यहाँ सेकंड पे, आप ये ठीक कर लेना, TB इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो TB की वैल्यू ज़्यादा है T नॉट B से। तो यहाँ थोड़ा सा बाई मिस्टेक इस ढंग से हो गया, आप इसको ठीक कर लेना। जो सेकंड लाइन है उसको आप लिखेंगे TB, नॉट को हटा देना आप। TB इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। अब आप ग्राफ बना रहे हैं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। तो सॉल्वेंट का कर्व ऊपर आएगा और सोल्यूशन का कर्व नीचे आएगा, क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। तो देखो वेपर प्रेशर जब भी बनाना है तो दो कर्व बना रहे हैं, तो सॉल्वेंट का ऊपर बनाना है और सोल्यूशन का नीचे बनाना है, क्योंकि सोल्यूशन को उतना वेपर प्रेशर देखने के लिए TB, यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि TB क्या है। देखो TB की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, सेम वेपर प्रेशर जब लेना हो तो कैसे वैल्यू आ रही है, देखो ज़रा ध्यान से। T नॉट B जो है वो वेपर प्रेशर पे, जहाँ अब देखो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया हमने टेम्परेचर, वाई एक्सिस के लॉन्ग लिया है वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर से एक लाइन खींची है हमने हॉरिजॉन्टल, जो दोनों पॉइंट्स को, दोनों कर्व को टच करी है, सॉल्वेंट को भी और सोल्यूशन को भी। यहाँ पे ये बता रहा है कि किस टेम्परेचर पे दोनों का वेपर प्रेशर सेम होगा, सेम वेपर प्रेशर। तो जो सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है यहाँ पे T नॉट B, और सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है TB। इतने टेम्परेचर पे ये सेम वेपर प्रेशर देंगे। तो यहाँ से आप देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग वेपर प्रेशर, एक्स एक्सिस के अलोंग टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो TB की वैल्यू T नॉट B से ज़्यादा आएगी। और हम वेपर फेज की बात करें तो वेपर किसके ज़्यादा बने, वेपर फेज बने ज़्यादा सॉल्वेंट के, क्योंकि सॉल्वेंट कम टेम्परेचर पे ज़्यादा वेपर दे रहा है, और उतने वेपर देने के लिए सोल्यूशन को ज़्यादा देर तक हीट करना पड़ रहा है। यहाँ से इस ग्राफ से ये भी क्लियर होता है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जैसे TB इज़ ग्रेटर देन T नॉट B। अब ये कर्व के बीच में जो डेल्टा TB लिखा हुआ है इसको हम बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हर चीज़ इस ग्राफ से क्लियर हो रही है। डेल्टा TB भी क्या है, T नॉट B क्या है, TB क्या है, और सेम वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में सेम रखा हमने, एक ही लाइन खींची वेपर प्रेशर, मतलब वेपर सेम करने के लिए जब हम सॉल्यूट डाल देते हैं नॉन वोलेटाइल तो ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ पर वेपर प्रेशर सेम देने के लिए। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, and the boiling point of the solution is always greater than boiling point of a pure solvent, and delta TB is that change in temperature, कि कितना चेंज आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जिसको जहाँ चेंज कैसा है, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है सोल्यूशन का, तो हम इस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट को ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। अब आप देखिए इन डाइल्यूट सोल्यूशन द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन सोल्यूट इन ए सोल्यूशन। मैथमेटिकली डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी M, एंड डेल्टा TB इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दें KB इंटू M, क्योंकि मोलैरिटी पे डिपेंड करेगा। क्यों, मोलैरिटी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है ना, हाउ मच सोल्यूट इज एडेड। सोल्यूट जब हम ज़्यादा ले रहे हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ये हमने पीछे डिस्कस किया। तो इसको यहाँ से एक इक्वेशन बन गई हमारी, डेल्टा TB बिकम इक्वल टू KB इंटू M, वेयर M इज़ मोलैलिटी, मोलैरिटी नहीं सॉरी मोलैलिटी, क्योंकि मास पे जो डिपेंड करता है वो मोलैलिटी है। वेट में आएंगे ना, यहाँ पे वेट में लिया, मोल्स में नहीं ले रहे हम, वेट में बाई वेट ले रहे हैं। तो मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर kg ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि मास में ले रहे हैं इसको ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर kg ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को 1 kg के हिसाब से, वेयर KB इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इट इज़ नोन एज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। इसको हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। और इसकी यूनिट क्या है KB की, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये भी कई बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ KB, जबकि ऐसी चीज़ें बड़े कम बच्चे पढ़ते हैं, तो इनको भी आपने थोड़ा ध्यान से रखना है। ये बार 1 नंबर का सिंपल क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। अब जहाँ पे देखें कि अब मोलैलिटी क्यों ले रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं, मोलैलिटी क्यों ले रहे हैं। देखो आपको पता है कि यहाँ पे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं,
तो जब भी हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू चार्लिस लॉ वॉल्यूम आल्सो इंक्रीज, वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। वॉल्यूम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। इससे कंसंट्रेशन टर्म वेरी कर जाएगी, तो इसको वाइड करने के लिए ही हम मोलैलिटी लेते हैं। तभी ये के डेल्टा टी वी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी लिखा, ना कि मोलैरिटी। तो यहाँ से वैसे ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आता है, पर फिर भी आपके कंसेप्ट ठीक रहे उस पर्पज़ से मैं समझा रहा हूँ। इसमें ये भी याद रखना कि मोलैलिटी क्यों आई। अब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को यूज़ करके मोलर मास निकालेंगे। जैसे हम रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर में निकाला था, वैसे यहाँ निकालेंगे। तो हमें पता है डेल्टा टी वी किसके बराबर आया, के बी इंटू एम। एम इज़ मोलैलिटी, तो एम इज़ इक्वल टू एन बी अपॉन डब्ल्यू, क्योंकि एन बी होगा नंबर ऑफ मोल डिजोल्व पर के जी ऑफ सॉल्वेंट। तो के जी का मतलब डब्ल्यू, वेट फॉर्म में ले रहे हैं हम। नो नेक्स्ट है, लेट्स डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी आर मास इन ग्राम ऑफ ए एंड बी कंपोनेंट रिस्पेक्टिवली। तो डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी जैसे हमने पहले लिया था वैसे यहाँ पे भी ले रहे हैं। सिमिलरली एम ए और एम बी लेंगे हम। एम ए एंड एम बी आर मोलर मास ऑफ ए एंड बी कंपोनेंट रिस्पेक्टिवली। तो डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी ले लिया, एम ए और एम बी भी ले लिया। तो अब हम इसको एम को एन बी को लिखेंगे हम। एन बी किसके बराबर आएगा, क्योंकि एन बी है यहाँ पे हमारे पास, तो एन बी इज इक्वल टू, एन बी किसके बराबर आएगा आपको पता होना चाहिए। अब डब्ल्यू बी या एम बी और डब्ल्यू बी, तो डब्ल्यू बी ओवर एम बी। आपको पता है जितने ग्राम दिया उसको ऊपर रखते हैं और उसके मोलर मास को नीचे रखते हैं जब मोल्स निकालते हैं। तो मोलैलिटी किसके बराबर आ गई, डब्ल्यू बी ओवर एम बी इंटू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए इंटू 1000। तो यहाँ पे आप देखो ज़रा ध्यान से, तो यहाँ पे एन बी निकाला डब्ल्यू बी ओवर एम बी, और एम की वैल्यू क्या थी, डब्ल्यू। जो वेट लिया हुआ वो किसका लेंगे हम, वेट ए का, सॉल्वेंट का वेट होगा, मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर के जी ऑफ सॉल्वेंट। तो इसलिए हमने इसको डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए किया है और मल्टीप्लाई बाई 1000 किया है। ये आपने मोलैलिटी की डेफिनेशन देख लेनी है जो हमने पढ़ी थी शुरू में। और अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब यहाँ से देखो, अब आप देखिए m की वैल्यू क्या आएगी, डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो मोलैलिटी की डेफिनेशन निकाल ली हमने क्वेश्चन नंबर 2 से। तो अब 2 से निकाल ली, तो अब आप देखो इसको हम डेल्टा टी वी में पुट करेंगे। डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। तो वी नो दैट क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये देखा, तो अब इसको 2 को 3 में पुट कर दो, तो डेल्टा टी वी किसके बराबर बन जाएगा, डेल्टा टी वी बन जाएगा, डेल्टा टी वी बन जाएगा के बी, डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। और ये आ जाएगा जहाँ से एम बी किसके बराबर आ जाएगा आपका, के बी इंटू डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। तो यहाँ से हम मोलर मास निकालेंगे सोल्यूट का बाय यूजिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये था भाई, तो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।